الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے بھائی اور دوستو، آج مسلمان بھی ہر میدان میں کامیابی چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے۔ کافر یقیناً مادی اعتبار سے آگے ہیں، دنیاوی اعتبار سے آگے ہیں، ترقی کے اعتبار سے آگے ہیں، اور ہر شعبے میں ہمارا مسلمان بھی ان کو رول ماڈل سمجھ بیٹھا ہے اور نمونہ سمجھ بیٹھا ہے۔ کامیابی کی ضمانت، کامیابی کا معیار ہمارا مسلمان نوجوان بھی انہی کو سمجھ بیٹھا کہ شاید ان کی پیروی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، ان سے زیادہ کامیاب مسلمان ہو سکتا ہے، ان سے زیادہ مسلمان ترقی کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس تاریخ ہے اور سنہرے حروف میں لکھی جانے والی تاریخ ہے، اور ایسا نہیں کہ سیاہ تاریخ ہے ہمارے پاس، روشن باب ہے تاریخ کا۔ وہ سب سے بڑھیا، سب سے بہتر، سب سے چھوٹی کی تاریخ ہمارے پاس ہے، لیکن آج مسلمان اس پر ٹک جائے، عمل کرے، پیروی کرے تو یقیناً کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ ترقی کے اس کے راستے میں یقیناً ترقی ہی ہوگی، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ اس کو مجبور نہیں کر سکتی، جھکا نہیں سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف آوری ہوئی، یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی دیکھیں تو غربت بھی ہے، بے بسی بھی ہے، اور کافروں کا ظلم بھی ہے، حاسدین کا حسد بھی ہے، دشمن لوگوں کی دشمنی بھی ہے، شریر لوگوں کا شر بھی ہے، اور حالات بھی ایسے ہیں کہ کئی مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا، یہاں تک کہ ایک گھاٹی میں قید بھی کر دیا جاتا ہے 3 سال تک، کہ بچے مٹی اور پتے یہاں تک کہ چمڑا کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ ایک سوٹ ہے، اس پر گزارا ہوتا ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ کھانے کے لیے یہ ہے کہ کھانا صبح شام دوپہر کو نہیں، ایک کھجور ملتی ہے دن میں۔ تو غربت بھی راستے میں ہے، حالات بھی، دشمن بھی، اور شیطان تو ہے ہی۔ ساری رکاوٹیں جو آج بھی مسلمان کے راستے میں ہیں، اس سے زیادہ اس وقت رکاوٹیں تھیں۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 20 سال کے عرصے میں دنیا کی کامیاب ترین شخصیت، کامیاب ترین ہستی، وہ ماحول جنت بن جاتا ہے، یقینی گارنٹی کی کامیابی لے لیتے ہیں وہ، اور نمونہ بن جاتے ہیں، اور پوری دنیا کے لیے رول ماڈل، مثال بن جاتے ہیں۔ کہ آج مسلمان وہ کامیابی ترقی نہیں کر سکتا اس میدان میں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کس نے فزکس پڑھی تھی، کس نے کیمسٹری پڑھی تھی، کس نے بیالوجی پڑھی تھی، کون سائنس ٹیکنالوجی سے واقف تھا؟ میرا عزیزو، کیا انگلش ان کو آتی تھی؟ کیا وہ آج کمپیوٹرز ٹیکنالوجی سے واقف تھے؟ یا آج کا سوشل میڈیا ان کے پاس تھا؟ یا آج کے جہاز اور آج کے یہ میزائل کیا ان کے پاس تھے؟ نہیں، ان کے پاس ایک ہی رول ماڈل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فرما برداری کی تھی۔ ایک ہی یونیورسٹی تھی، وہ محمدی یونیورسٹی، اس یونیورسٹی سے فارغ تھے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کا نام نہیں سنا تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی سے واقف نہیں تھے، ٹوکیو یونیورسٹی ان کے راستے میں نہیں تھی، سڈنی یونیورسٹی ان کے دور دور تک ان کی حاشیے خیال میں بھی نہ تھی، محمدی یونیورسٹی تھی، اور محمدی یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل حضرات نے پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بجا دیا، اور اللہ نے وہ کامیابی عطا فرمائی کہ کافر بھی مجبور ہوا ماننے پر، ہندو بھی جھک گیا، یہودی بھی تابع دار ہو گیا، اور پوری دنیا پر حکمران بن گیا صرف 20 سال کے عرصے میں۔ آج میرے وطن عزیز کو، عالم اسلام کی تاریخ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے وطن عزیز پاکستان جو کلمہ کی بنیاد پر منا، 70 سال ہو گئے، کیوں نہیں غربت مٹ سکی؟ کیوں نہیں کامیابی ہو سکی؟ کیوں نہیں ترقی ہو سکتی؟ اس لیے کہ ہم غیر کے تابع ہو گئے، ہم غیر کی فرما برداری کر بیٹھے، اور غیر کو نمونہ رول ماڈل سمجھ بیٹھے، اس لیے 70 سال گزرنے کے بعد وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ میرا عزیزو، آئیے، کامیابی کی گارنٹی ہے، ترقی کی ضمانت ہے، کس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پیروی کی تھی، تو پھر اللہ نے کیسا رول ماڈل بنوایا کہ آج کی سائنس یہ کر سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو ان کے پاس ایک بچہ تھا، ان کا ایک لڑکا بیٹا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
उस औरत को तो मदीना मुनव्वरा की औरतों को दे दिया और उस बेटे को सूफा में शामिल कर लिया। तो सूफा में तरबियत पाई उसने, वहीं पढ़ता रहा, पलता रहा, तरबियत याफ्ता हुआ। अल्लाह का करना, वक्त आ गया, फोत हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, या रसूल अल्लाह जनाजा है, फ़लाँ औरत का बेटा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसकी माँ को बताया। या रसूल अल्लाह नहीं बता सके, फरमाया इसकी माँ को बताओ। वो माँ आई, उसने कहा या अल्लाह मैं अपनी मर्ज़ी से कलमा पढ़ा, मुसलमान हुई, काफिरों को या अल्लाह हंसने का मौका न दें, मुशरिकीन मक्का को मजाक उड़ाने का मौका न दें, मेरे दुश्मनों को मेरा इस्तेहज़ा का मौका न मिले। ऐ अल्लाह तू कादिर है, जब तू पैदा कर सकता है तो ज़िंदा भी कर सकता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वो मुर्दा बच्चा जो फौत हो चुका था, अल्लाह ने उसको ज़िंदा कर दिया, हमारे साथ खाना खाया, यहाँ तक कि उसकी माँ भी फौत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए दुनिया से, उसके बाद अल्लाह को प्यारा हुआ। आज की साइंस ये कर सकती है, आज की टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। दुनिया में कोई तारीख़ ऐसी नहीं जो रोशन तारीख़ हमारे पास है, लेकिन हम उस तारीख़ पर चलते नहीं, अमल नहीं करते, नाफरमानी करते। मैं कहा करता हूँ दुनिया का सबसे, बल्कि हज़रत शेख अल-हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, दुनिया का सबसे बड़ा महारत रखने वाला जिनके पास मौजूद हो, वह गली कुचू के डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, तबीबों से इलाज करवाएं तो समझ लो ये भोले भाले लोग हैं, वह नादान लोग हैं। मेरे दीदो, जो तारीख़ हमारे पास है, जो कामयाबी की गारंटी हमारे पास है, जो तरक्की की ज़मानत हमारे पास है, मुसलमान की तारीख़ है, वो काफिर के पास नहीं, गैर मुस्लिम के पास नहीं, वो हमारे गैर के पास नहीं, न हिंदू, यहूदी, न ईसाई, किसी के पास नहीं है। आइए हम दोहराएं उस तारीख़ को, आइए हम फरमान नबी पर सर झुका दें, अल्लाह की ताबीदारी करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करें। तो यकीनन आज भी वही अल्लाह है जिस अल्लाह ने, आज भी अल्लाह ज़िंदा है, उसी ताकत के साथ, उसी अज़मत के साथ, उस हैबत के साथ और उसी बुलंदी और शान के साथ आज भी अल्लाह मौजूद है। जिस अल्लाह ने साहबा कराम को फतूहात से नवाजा, जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया उनके कदमों में डाल दी, वो अल्लाह आज भी मुसलमानों के साथ है। लेकिन आज का मुसलमान फरमाबरदार बन जाए, क्या करना है? कामयाबी के राज हैं, मैंने हदीस से, कुरान से चुने, कम से कम 10 से ज़्यादा हैं जो सिर्फ आमाल पर मबनी हैं। उसके लिए कोई जहाज़ों की ज़रूरत नहीं, उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं, उसके लिए कोई मिसाइल की ज़रूरत नहीं, उसके लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की ज़रूरत नहीं, उसके लिए मैथ और ये सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। वह है मुहम्मद यूनिवर्सिटी। सबसे पहला कामयाबी का राज, पहला कामयाबी का जीना और सीढ़ी और पहला चप्पू कामयाबी का है, वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी। जैसे साहबा कराम ने करके दिखाई, पूरी दुनिया में अल्लाह ने डंका बजा दिया। आज मुसलमान बेयार और मददगार हैं, पूरी दुनिया में परेशान हैं, पूरी दुनिया में ज़िल्लत इन पर मुकद्दर हो चुकी है, रुसवाई इनके हिस्से में आ चुके हैं, परेशानी इनका घर नहीं छोड़ती। तो क्यों है कि इसलिए अल्लाह के रसूल की नाफरमानी सस्ती नहीं है, महंगी है। ये नाफरमानी छोड़ दें, फरमाबरदारी कर लें। जिस अल्लाह ने साहबा कराम के साथ मदद फरमाई, वो आज अल्लाह जिंदा है, वो उसी ताकत और अज़मत के साथ मौजूद है। आज भी अल्लाह कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। मेरे दीदो, आज की साइंस, आज की टेक्नोलॉजी, आज का साइंसदान ऐसा नहीं कर सकता जैसे अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के बदौलत साहबा कराम को अता फरमाई। तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला बिन सैद रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, जन्नतुल बकी में अंसारी का एक जनाजा, अल्लाहु अकबर, से वापस आ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे जनाजे से, जन्नतुल बकी से वापस आ रहे थे। 100 भेड़िए अपनी भेड़ियों की तर्जमानी के लिए, उनके तर्जमान मुकर्रर हुए 100 भेड़िए, वह हाजिर हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। या रसूलल्लाह, साहबा कराम को अर्ज़ फरमा दें आप कि इनकी बकरियां हैं, इनमें से सालाना हमारा हिस्सा मुकर्रर कर दें, हर एक रेवड़ में से एक हिस्सा। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया साहबा कराम से, भी हर बंदा अपने रेवड़ में से सालाना एक बकरी दे दे। साहबा कराम ने कबूल न किए। फिर एक रिवायत में 100 भेड़ी है, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कुछ तो हिस्सा मुकर्रर कर दें। तो साहबा कराम से अर्ज़ किया, साहबा कराम से फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, भाई ये भेड़िए हैं, ये फरियाद लेकर आए हैं, ये भूखे हैं, इन्हें खाना चाहिए, अपने अपने रेवड़ में से कुछ हिस्सा सालाना मुकर्रर कर दो। साहबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमईन की खिदमत में हाजिर हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम खुद फ़कीर हैं, हम खुद गरीब हैं, फ़क्र फ़ाका हमारे पास है, फ़िलहाल
हम इनको कोई हिस्सा नहीं सकते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, जाओ इन भेड़ियों को बता दो आपका कोई हिस्सा नहीं इन बकरियों में से, कोई खुराक नहीं ले सकते, आप कोई शिकार नहीं कर सकते। तो वो हदीस में है, आवाज़ें निकालते हुए यानी फरियादें करते हुए, नोहा बैन करते हुए, हाय हाय करते हुए वापस हो गए। ये कामयाबी साइंस में कहाँ हासिल कर सकती है कि भेड़िया मोहताज होकर खिदमत में हाजिर हो जाए, भेड़िया भी ताबेदार फर्माबरदार हो जाए। आज भेड़िया पूछेगा मैं शिकार करूँ बकरी? हाँ, आज भी पूछ सकता है भेड़िया, आज भी फर्माबरदार हो सकता है भेड़िया। तब हमारी बकरियां आज भी महफूज हो सकती हैं, हमारे बच्चे आज भी महफूज हो सकते हैं, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी औरतें आज भी महफूज हो सकती हैं, हमारे मुसलमान बच्चे आज भी महफूज हो सकते हैं अगर हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्माबरदार बन जाएं। ये नाफरमानी ने ज़िल्लत में पहुंचा दिया, ये बेवफाई ने हमें इस हद तक झुका दिया। तो मेरा दीदो, ये यकीनी कामयाबी है, गारंटी है कामयाबी की। हम अल्लाह के रसूल के फर्माबरदार बन जाएं। नाफरमानी करके देखी है, बेवफाई करके देखी है, बेवफाई के झंडे लगा दिए, बेवफाई का मज़ा चखा, फर्माबरदारी का मज़ा चख के देखें, दुनिया के सारे मज़ों से बढ़कर है, आला है। तो आइए आज से तौबा कर लें, फिर देखें कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मुसलमान कहीं परेशान नहीं होगा। मुसलमानों की माल की भी गारंटी है, कामयाबी की भी गारंटी है, तरक्की की भी ज़मानत है, और बच्चे इनके भी महफूज हो जाएंगे। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाती है, हम समंदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजा था, ये समंदर में गए, समंदर की कश्ती टूटी, ये एक तख्ते पे बैठकर कहीं दूर जजीरे में पहुंच गए, जंगल में पहुंच गए। जंगल में खाना की पीना कुछ नहीं, ज़्यादा राह ख़त्म हो गया। एक शेर देखा तो उनसे कान में, शेर के कान में, कई रिवायतों का खुलासा बता रहा हूँ, कान में कहा कि मैं सफ़ीना हूँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। तो हज़रत फ़ारूक़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में इसी रिवायत को लिखते हैं। हज़रत शेख अदीज़ ज़करिया रहमतुल्लाह ने भी लिखा है, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है, लेकिन मैं हज़रत फ़ारूक़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत को, उनके बयान करदा वाक़या को लेता हूँ। वो फरमाते हैं, हज़रत सफ़ीना ने उनके कान में ये अल्फाज कहे और थप्पड़ रसीद किया और सवार हो बैठे। और हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि शेर के कान में कहा और शेर दुम हिलाता हुआ रास्ता बताता गया, वहाँ पहुँचा कर आए जहाँ रोशन जगह थी, जहाँ आबाद जगह थी, जहाँ उनके साथी पहुँच चुके थे। हज़रत फ़ारूक़ी शहीद रहमतुल्लाह लिखते हैं, थप्पड़ रसीद किया, कान में क्या, सवार होकर बैठे, और शेर दुम हिलाता हुआ, बड़बड़ाता हुआ और अपनी गरजदार आवाज़ में गरजता हुआ चलता चलता वहाँ पहुँचा जहाँ इनके साथी थे हज़रत सफ़ीना के। तो हज़रत फ़ारूक़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस वाक़या को मज़ीद, इसको हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने जिक्र नहीं किया। वो फरमाते हैं, जब ये वापस आए हज़रत सफ़ीना, हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर हुए, या रसूलल्लाह, ऐसे ऐसे जंगल में पहुँचे, कश्ती टूटी, ऐसे शेर पर सवारी की, वो गरजता हुआ कुछ कह रहा था और अपनी भड़ास गुस्सा निकाल रहा था, दुम भी रहा था। या रसूलल्लाह, समझ नहीं आई वो क्या कह रहा था, मुझे पहुँचा कर भी आए जहाँ पहुँचना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ीना तूने कुछ कान में कहा था उसके शेर के? या रसूलल्लाह, मैंने उसके कान में कहा था कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ीना जब तूने ये कहा मैं ग़ुलाम हूँ, तो शेर गरजता हुआ, धाड़ता हुआ यही कहता हुआ जा रहा था, अगर तुम मोहम्मद के ग़ुलाम हो तो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हूँ। चलो तो आपको छोड़ कर आता हूँ। मेरा दीदो, क्या आज की साइंस ये शेर को झुका सकती है कि शेर बकरी बन जाए, शेर ये लोमड़ी बन जाए, शेर गुलाम बन जाए, शेर ताबेदार बन जाए? आज की साइंस झुका सकती है? आज की साइंस ये मिसाल दे सकती है? पूरी दुनिया इस मिसाल को नहीं पेश कर सकती। ये मिसाल मेरे आका के कदमों में होकर जाती है, ये मिसाल अल्लाह के रसूल के फरमाबरदारी से मिलती है। तो मेरे दीदो, आइए आज तौबा कर लीजिए। कामयाबी चाहते हैं, कामयाबी की गारंटी है। तरक्की चाहते हैं, तरक्की की ज़मानत है। मुसलमान बेयारो मददगार हैं, घर से बेघर हैं, परेशान हैं और ज़िल्लत की वादियों में घर चुके हैं। आइए, उठिए, दोबारा उरूज पाइए, दोबारा तरक्की की शाहराह पर दौड़िए और कामयाबी की गारंटी लीजिए। वो कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारी से। कामयाबी का पहला राज, कामयाबी का पहला जीना, कामयाबी की पहली सीढ़ी, पहला चप्पू यही है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार बन जाएं तो यकीनन यही कामयाबी गारंटी की है। तो मेरा दीदो, क्यों ना हम ऐसे करें। मेरा दीदो, एक रिवायत में है, हज़रत इब्न अब्बान रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, एक सफ़र में
मुसाफिरों का काफिला जा रहा था तो देखा आगे शेर ने रास्ता रोका हुआ है। तो हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी तशरीफ़ ला रहे थे। किसी ने कहा हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कि हज़रत शेर ने रास्ता रोका हुआ है, उधर वाले इधर नहीं आ सकते, इधर वाले उधर नहीं जा सकते, शेर धाड़ रहा है, डरा रहा है, इधर वाले इधर डरे हुए, उधर वाले उधर डरे हुए। तो हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों को हटाते हुए तशरीफ़ ले गए और उसको उसी तरह हज़रत सफ़ीना की तरह थप्पड़ मारा और उसको उठा के उसके दम से हिलाकर भगा दिया। शेर धाड़ता हुआ भागता गया, रोता हुआ चिल्लाता हुआ चला गया। वो काफिला रवां दवा हुआ। जो लोग डरे हुए थे वो चलना शुरू हुए और रास्ते की रुकावट दूर हो चुकी थी। मेरा दीदो, क्या आज की साइंस ये मिसाल पेश कर सकती है? क्या आज का साइंसदान ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। आज के दरिंदे गुलाम बन सकते हैं? नहीं बन सकते। ये कब बनेंगे? जब हम अल्लाह के रसूल के फरमाबरदार बन जाएं, यकीनी कामयाबी लेनी है तो आइए हुजूर के दर पर झुक जाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन जाएं, फरमाबरदार बन जाएं। सिर्फ हुजूर के नाम लेने से, आशिक रसूल कहलाने से काम नहीं चलेगा। फरमाबरदारी करनी पड़ेगी, आमाल करने पड़ेंगे, साहिब आमाल, साहिब अमाल और साहिब किरदार बनना पड़ेगा, तब जाकर कामयाबी छुएगी। तो मेरा दीदो, क्यों न हम ऐसे करें जैसे हज़रत कैस रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला की जब मिस्र फतह हुआ तो मिस्र के लोग आए, उन्होंने कहा सालाना दरियाए नील एक लड़की लेता है तब चलता है। तो उन्होंने फरमाया नहीं, अब ये नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं होगा। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़त लिखा तो उन्होंने पर्ची लिखी, जाओ दरिया को पेश कर दो, दरिया चलता है तो चले, नहीं तो तेरी कोई ज़रूरत नहीं। वो पर्ची दरिया के हवाले की गई, दरिया आज तक नहीं रुका। क्या ये दरिया भी फरमाबरदार हो सकता है साइंसदानों का? क्या पूरी दुनिया मिलकर दरिया को ताबे कर सकती है? नहीं कर सकती। ये ताकत मुसलमान के पास है, ये आज़मत मोमिन के पास है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के पास है। मेरा दीदो, आइए आज से तय कर लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी से वो कामयाबी मिलेगी, वो तरक्की मिलेगी कि जिससे आज की तरक्की भी हेच नज़र आएगी, ये छोटी नज़र आएगी, ये रास्ते के एक तिनका नज़र आ जाएगा। जितनी तरक्की, जितनी कामयाबी आज की साइंसदानों ने हासिल की है, ये मामूली है। आइए आला कामयाबी हासिल करें, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से होकर जाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी से होकर जाती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि वो ऐसी कामयाबी मिल जाए जो आज की साइंस पेश नहीं कर सकती। मैं आखिरी एक अर्ज़ करता हूँ, एक रिवायत अर्ज़ करता हूँ। हज़रत उरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू रेहाना सफ़र कर रहे थे और सफ़र में अपनी कापियाँ सी रहे थे। समंदर में थे, कश्ती में सवारी की हुई थी, कापियाँ सी रहे थे, सुई गिर गई समंदर में। तो वहीं फरियाद किया, अल्लाह मेरी सुई ज़रूरत थी, मैं ही कापियों से सिलाई कर रहा था, अल्लाह ये सुई मेरी ज़रूरत की चीज़ नीचे गुम गई, समंदर में चली गई, मेरी सुई मुझे वापस कर दी जाए। अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, पानी में वो सुई जो नीचे गिर चुकी थी, जो गुम चुकी थी, डूब चुकी थी, वो सुई पानी में तैरती हुई कश्ती के बराबर आ गई। उन्होंने हाथ से उठाई और दोबारा सीना शुरू कर दिया। मेरे जो पूरी दुनिया के साइंसदान मिलकर, पूरी दुनिया के कामयाब लोग मिलकर, पूरी दुनिया का हमारा गैर मिलकर इस सुई को समंदर से नहीं निकाल सकता, ये कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। ये कामयाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी से होकर जाती है, हुजूर की गुलामी में है, अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी में है। तो आइए आज से तय कर लीजिए, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार बनेंगे, यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी, तरक्की आपके रास्ते का एक जीना बन जाएगा, आपके ग़ुलाम बन जाएगी। तो सारी दुनिया को कामयाबी और तरक्की चाहिए, मुसलमानों को भी कामयाबी तरक्की चाहिए। तो गैर की फरमाबरदारी ना करें, गैर को रोल मॉडल ना बनाएं, गैर को मिसाल ना बनाएं। मैं दोबारा दोहराता हूँ, सहाबा कराम के पास क्या था, क्या डिग्रियाँ थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सिडनी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और टोक्यो यूनिवर्सिटी। क्या सुना था? क्या वो गए थे? क्या एडमिशन लिया था? क्या वो इस फ़न से वाकिफ़ थे जो आज के फ़नून हैं? मेरा दीदा, पूरी दुनिया को कदमों में डाल दिया तो वो अल्लाह है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की वजह से पूरी दुनिया उनके कदमों में डाल दी, पूरी दुनिया में फ़तह किया, उन्होंने झंडे गाड़ दिए। तो आइए आज वही अल्लाह ज़िंदा है, वो ताकत, वो अज़मत, वो हैबत वाला, वो कुदरत वाला, वो आज भी कुदरत रखता है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی بدولت آج بھی ہمیں اللہ وہ کامیابی دے سکتا ہے، وہ ترقی دے سکتے ہیں۔ تو کامیابی کے 10 راز، ترقی کے 10 زینے، ترقی کے 10 چپو، ان میں سے پہلا کامیابی، یقینی کامیابی، گارنٹی کی کامیابی وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ تو آئیے آج سے آنکھوں کو بھی فرما بردار بنا دیجئے، زبان کو بھی، کان کو بھی، دل دماغ کو بھی، اپنے رات دن، اپنی کاروبار، اپنی بازار، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے ملک کو، یہ ملک آپ کا حضور کا غلام بن جائے، یہ ملک آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جائے، تو وہ اسی طرح مدینہ منورہ کی طرح اور یہ دنیا پھیرائے گی، رول ماڈل بنائے گی۔ کامیابی وہی ہوگی جو پائیدار کامیابی ہے۔ یہ عارضی کامیابی ہے سائنسدانوں کے پاس۔ ایک سائنسدان ایک تھیوری پیش کرتا ہے، 50 سال بعد کہتا ہے وہ غلط تھی، دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے یہ صحیح ہے، 10 سال بعد کہتا ہے یہ غلط تھی، لیکن ایک ہی تھیوری ہے، ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی یقینی کامیابی گارنٹی ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ تو فرشتے بھی قدم چومیں گے، فرشتے بھی آپ کی مدد کو اتریں گے، تب جب وہی جذبہ، وہی ایمان، وہی فرما برداری کر دیں۔ اللہ میرے سارے مسلمانوں کو، چاہے وہ مشرق کے ہوں، چاہے مغرب کے ہوں، چاہے شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے۔ اللہ پوری دنیا کی مسلمانوں کی کامیابی، ترقی، جو یقینی گارنٹی کی یقینی ترقی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہے۔ اللہ میرے سارے مسلمانوں کو یہ سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے۔ درس قرآن www.darsequran.com